Hello students, so let's begin now the lesson number 13 of the electrostatics, which I've already taught you in the regular class, Gauss theorem, but since we are doing it serial wise, so I am explaining it again to you. So before Gauss theorem, that is a topic known as what, which I've taught you already, that is electric flux. Okay, this is the name of the topic, electric flux. Okay, what is the meaning of electric flux? Okay, flux means what? Collection. That is the meaning of flux. So electric flux means what? The collection of what? Electric field lines passing normally to the conductor. Right? Collection of the electric field lines passing normally to the conductor. What does it means? That suppose you have a conductor like this is a conductor. तो इस कंडक्टर से जो 90 डिग्री से के एंगल से पास होगी फील्ड लाइन, सपोज ये यहाँ पे ये सरफेस ऐसे पास हो रही है लाइक दिस, फील्ड लाइन शुड बी एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्टर, राइट? You know, field lines cannot pass inside the conductor. So this is basically what collection of these field lines will be known as what? Electric flux. What is the symbol of this? Phi is a symbol of the electric flux. This is a symbol, right? And what is the unit of the electric flux? Very important. Unit of the electric flux is Newton per Coulomb times of the meter square. What are the dimension? M1 L1 T minus 2 force के होते हैं, चार्ज के क्या होते हैं? A1 T1 times of what? Okay, L2 for meter square. So what are the dimensions of the electric flux? Symbol of the electric flux is phi E. This is a symbol, phi E. This is symbol of the electric flux. So dimension क्या हो जाएंगे इसके? That will be M1 L3 T minus 3 A minus 1. Very important question of 1 mark एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में इस साल. M1 L3 T minus 3 A minus 1. These are the dimension of the electric flux. Unit is Newton per Coulomb times of meter square. Now इसका एक mathematical formula भी हम देख लेते हैं अभी. तो what is the mathematical formula? Suppose your conductor is like this, right? और इसका area जो है पूरा area A है, कर्व इसका surface area. Now to calculate flux you have to do what? You have to take a very small elementary part of this area. Let it be dA, right? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से निकल रही, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यहाँ पे, वो है E, राइट? सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्लक्स? फाई E जो फ्लक्स है, फाई E, दैट विल बी डिफाइंड एज व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन. ये सिंबल होता है इस तरह से, सरफेस इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के ऊपर गोला लगा देंगे तो सरफेस इंटीग्रेशन, दैट मीन्स पूरी सरफेस का इंटीग्रेशन कर दिया हमने. ओके, टाइम्स ऑफ E डॉट ऑफ dA, राइट? Where E is the electric field line and dA is the area vector, right? Okay, so this is the formula of the electric flux. ये electric flux का formula हो गया, phi E is equals to E dot dA. So this is all about the electric flux. अब हम Gauss theorem के बारे में देखते हैं. Now dear students, let's study the most important part of this chapter. इस chapter का सबसे ज़्यादा important part, the most important part of this chapter. And what is that basically? That is basically the Gauss theorem. Okay, Gauss theorem is a name. Very very important part, Gauss theorem. Now what is Gauss theorem? Basically Gauss theorem, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस के अंदर किसी भी चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है. सो फॉर कैलकुलेटिंग दैट यू हैव टू यूज द Gauss theorem. Who was the scientist who invented this, who given this theorem? Carl Friedrich Gauss was the name of the physicist जिसने ये बताया था. So what I have drawn in this figure, you can see very clearly, I have drawn a conductor, charge conductor. चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे स्प्रेड होता है लाइक दिस, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है. सो व्हाट आई विल डू, गाउस थ्योरम क्या बोलती है? पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक गाउसियन सरफेस बनाएंगे. आई विल ड्रॉ अ गाउसियन सरफेस और अ गाउसियन बैग हेयर. ओके, राइट, इस तरह से बना दिया, ठीक है. इन द अदर साइड यू कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो. दिस इज अ चार्ज कंडक्टर लाइक दिस, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उससे नॉर्मली पास होगी हमको वही कंसिडर करनी है. तो यहाँ पे मैंने इसके चारों ओर ऐसा ही एक सरफेस बना दिया.
दिस सरफेस इज नोन एज व्हाट, इसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में, दिस इज नोन एज द गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस, इसको गाउसियन सरफेस बोलते हैं. सो व्हाट इज द गाउस थ्योरम सेज, गाउस थ्योरम की सेज क्या बोलता है गाउस थ्योरम कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स okay, coming out of closed Gaussian surface, coming out of closed Gaussian surface, right, closed Gaussian surface, that means closed Gaussian surface से बाहर निकल तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is 1 by epsilon 0. epsilon 0 is what, epsilon 0, that is permittivity of the free space. कूलम्स लॉ में पढ़ा था हमने. 1 by epsilon 0 times total charge enclosed inside the surface. That means what, इसमें से जो बाहर फ्लक्स निकल रही है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी, that will be equal to what, total charge which is inside, that is sigma q. ये टोटल अंदर जो जितना भी चार्ज है उसका सम, ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 के बराबर होती है. राइट. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फाई, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है. अगर इसका एरिया वेक्टर में सपोज इसका स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट लेता हूँ, दैट इज डी ए, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ई डॉट डी ए, वेयर ई इज व्हाट, द इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, ए इज बेसिकली हियर द एरिया वेक्टर. ए यहाँ पे एरिया वेक्टर है. राइट. एरिया स्केलर भी होता है, एरिया वेक्टर भी होता है. स्केलर कब होता है, जब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी पढ़ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस वगैरह, तो वहाँ पे एरिया वेक्टर हो जाएगा. तो ई डॉट डी ए विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल चार्ज सिग्मा क्यू, ओके, इनसाइड, दैट इज एनक्लोज, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय व्हाट, एप्सिलॉन 0, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. नाउ यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिस सिग्मा क्यू चार्ज विल बी व्हाट, that will be equal to q1 plus q2 plus q3 चार्ज, जितना भी चार्ज होगा up to what, qn, right, q1 plus q2 plus q3 plus that is up to qn. now this sum will be algebraic sum. ये sum कैसा होता है, this is basically the algebraic sum. that means what, आपको साइन भी इंक्लूड करना है. सपोज चार्ज है -2 + 3, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, -2 + 3, दैट इज -1 कूलम. ठीक है ना, -2 + 3 दैट इज 1 कूलम, नॉट -2 + 3 व्हाट, +1 कूलम. सपोज चार्ज है -2, टोटल चार्ज कितना है, -2 + 4 एंड -9 कूलम. तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -2 + 4 दैट इज -2, -2 + 4 दैट इज +2, +2 -9 दैट इज व्हाट, हाउ मच इज दिस, ओके, दिस विल बी व्हाट, ओके, +2 में से -9 गए तो दैट इज व्हाट, -7 कूलम्स हो जाएगा. ऐसे आपको चार्ज निकालना है. ठीक है ना, ओके, वेरी सिंपल. राइट. तो इसमें एल्जेब्रिक सम करना होता है चार्ज का जो अंदर है. अब चार्ज वही लेना है जो गाउसियन सरफेस के अंदर होगा. सपोज कि चार्ज बाहर है यहाँ पे, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, यू डोंट हैव टू इंक्लूड दैट. जैसे फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे चार्ज है 3 कूलम एंड 4 कूलम, और बाहर है 9 कूलम का चार्ज. तो टोटल चार्ज कई लोग लिख देंगे 4 + 3 + 9 कर देंगे, दैट इज़ कितना हो जाएगा, 16. पर ये आंसर नहीं है. ये वाला चार्ज नहीं लेना है क्योंकि ये गाउसियन सरफेस के बाहर है. गाउसियन सरफेस के अंदर कितना है, 4 + 3 दैट इज 7 कूलम. तो 7 कूलम चार्ज ही लेना है आपको. इस तरह से इसके और एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस व्हेन आई विल डू. राइट. तो राइट नाउ आप इस वॉच दिस लेक्चर अगेन. राइट. okay, practice a very small assignment which I am giving you, okay, and then we'll continue in the regular class also. I hope you like this lecture, okay, about the Gauss theorem. It is a very important lecture. Next lecture में हम लोग important part करेंगे जो एग्जाम में ज़रूर आएगा, that is the derivation of the applications of the Gaussian theorem. इसके ऊपर applications electric field निकालने की. So in the next lecture we are going to do. Watch this lecture very carefully, read the notes, solve the assignments, okay. Thank you dear students, we'll meet in the next class now. Bye bye.